بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نیوز کارڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ادیبہ قاضی. ناظرین آج بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے خطابات کے حوالے سے. انہوں نے کل بھی ایک اہم خطاب عوام سے کیا, آج بھی انہوں نے ایک اہم خطاب کیا, لیکن عوام اور ہم سب ان دونوں خطابات کو آپس میں ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ان خطابات پر بات کرنے سے پہلے ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس میں عمران خان خطاب کر رہے ہیں. تو کیا فرق پڑے گا؟ سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا ہمارے ملک کو کہ بڑی مشکلوں سے ہماری معیشت اٹھ رہی ہے. بڑی دیر کے بعد پاکستان کے اندر انڈسٹری اوپر جا رہی ہے. جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے, اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے. اس کا مطلب کیا کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں, تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ معیشت کو کافی انہوں نے امپورٹنس دی کل کے خطاب میں. آج کے خطاب میں انہوں نے جو زور دیا وہ ان کی اخلاقیات کی طرف تھا. انہوں نے کہا کہ معیشت بعد میں آتی ہے, معیشت سیکنڈری تھنگ, پرائمری چیز جو ضروری ہے کسی بھی قوم کے لیے وہ اخلاقیات ہیں. اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں گے جناب چودھری خادم علی مانڈلا صاحب. سر السلام علیکم. سر سینئر تجزیہ کار بھی ہیں, روز ہمارا ساتھ دیتے ہیں. سر آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں, بہت شکریہ سر. آج ہمارے ساتھ رہنما مسلم لیگ نون ہوں گی, ساتھ ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ. میم السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو ٹو انوائٹ. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ لائن پہ رہیں گی ڈاکٹر اسما راجہ جو کہ رہنما پی ٹی آئی ہیں. بات کا آغاز کریں گے خادم علی مانڈلا صاحب سے. سر بتائیے گا اس ساری سچویشن کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ ان کے خطابات کو ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ہے, یو ٹرن کے کافی زیادہ ہیں, سمجھ نہیں آ رہی رائٹ پہ جائیں لیفٹ پہ جائیں, عوام خود ہی کافی کنفیوژن کا شکار ہے. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ادیبہ. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان جو کہ مشہور ہیں پوری دنیا میں ہی ہو گئے یو ٹرن کے حوالے سے, جن کو خود ہی پتہ نہیں چلتا کہ میں نے صبح کیا کہا اور شام کو کیا کہا. یہ جو سپیچ کل والی ان کی دکھائی ہے 2 دن پہلے جو کی انہوں نے کہ اگر ہم نے فرانس کا سفیر میلون کو باہر نکالا تو پتہ نہیں یورپی یونین جو ہے وہ روٹ جائے گی, ہماری ٹیکسٹائل یعنی کہ روزی بند ہو جائے گی. سیدھے لفظوں میں معنی تو اس کا یہی ہے کہ جیسے رازق جو ہے نا وہ یورپی یونین ہے, جبکہ بحثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ رازق تو اللہ کی ذات ہے. تو میرا خیال ہے آج جہاں وہ خطاب کر رہے تھے کسی اور سوسائٹی کا جا کے, وہ کیا کہہ رہے تھے کہ کسی بھی ملک کے مالی وسائل کی وجہ سے ملک غریب نہیں ہوتا. یہ الفاظ تھے آج کے. بہتر تو یہ ہوتا کہ یہ آج والے الفاظ بھی جو ہے وہ آپ اسی طرح سنا دیتی تاکہ عوام ان الفاظوں کو بھی سن لیتی. بھائی اگر نہیں ہوتا تو کل آپ کہہ رہے تھے سارا کچھ معیشت ہی ہوتی ہے, یورپی یونین روٹ جاتی ہے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ دوہرا معیار کیوں ہے, کس لیے ہے, کن لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں؟ یعنی کہ جو تقریر لکھ کے دینے والے ہیں کم از کم وہی اس چیز کا جو ہے وہ خیال کرے کہ جناب کل آپ نے یہ کہا ہے, آج آپ نے یہ لفظ نہیں کیا, تاکہ عوام کو تو پتہ چلے. یا تو ہمیں یہی ایک درس دے کہ آپ نے غلامی کرنی ہے یورپی یونین کی, ہمیں جو ہے نہ عزت نہ غیرت نہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, یعنی کہ ہماری ٹیکسٹائل بند نہ ہو, یعنی ہمارا آئی ایم ایف ہم سے روٹ نہ جائے, یعنی کہ جو آپ کے بین الاقوامی اقاع ہیں وہ آپ لوگوں سے نہ رہتے, تو ہمیں کوئی ایک طرف تو درس دے, تو یا غیرت جرأت اور ہمت کا درس دے جو ہمارا معیار ہے, جو ہمیں درس دینے کی ضرورت ہے. اس طرف کو درس نہیں دیتا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ملک اخلاقیات, تو بھئی اخلاقیات ہی اگر بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ 2 دن پہلے یہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر جو بندوقوں سے چھلنے کیے, شہید کیے, تو یہ بندوقیں ان اخلاقیات تباہ کرنے والوں کی طرف اگر ہو جاتی, منی لانڈروں کی طرف اگر ہو جاتی, چینی گندم چوروں کی طرف اگر ہو جاتی, جنہوں نے میڈیسن کے سکنڈل کیا ان کے اوپر اگر ہو جاتی, بڑے بڑے مافیا جن کے امپائر بار کھڑے ہیں ان کی طرف اگر یہ بندوقوں کے رخ ہو جاتے تو میرا خیال ہے پورا ملک آپ کو داد دیتا, آپ کو سیلوٹ کرتا, آپ کی زندگی کے لیے دعائیں کرتا کہ یار ایسا حکمران آیا ہے. آپ نے جن لوگوں ڈاکوں, چوروں, لٹیروں, قاتلوں, منی لانڈروں
को जो है तबाह करना था, उनसे हट के आप एक गरीब लोगों की तरफ आके जो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे थे, आपने ये बंदूकों के रुख उस तरफ कर लिए। मेरा ख्याल है कि अभी ये नारों में दम नहीं है, आप एक तरफ चले, या तो अवामे पाकिस्तान को एक तरफ दे कि जनाब हम यूरोप के बगैर जिंदा नहीं है। वो हमें तो पता है कि ज़ाहिर है इनकी औलादें बाहर है, जिसकी औलाद बाहर होगी उसका पाकिस्तान से कितनी दिलचस्पी हो सकती है। ये अकेला इमरान खान नहीं, तमाम हुक्मरान जो पार्टियों के ऊपर बैठ के हुक्मरानी कर रहे, तमाम की जायदादें देखे, उनकी औलादें देखे, इनके इलाज देखे, इनके खाने पीने की इशारा कहाँ से आती हैं वो देखे, अपने निज़ाम को देखे। और अवाम, गरीब अवाम को क्या तरस देते हो? गरीब अवाम तो सारी दुनिया ने देख ली कि किसी भी दौर में उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई उसकी अहमियत नहीं है। नून लीग का दौर आता है तो सामने मॉडल टाउन ऐसे ही बोल देते हैं, 100 बंदे को जख्मी कर देते हैं। आपका दौर आया तो आपने उससे भी 10 गुना बढ़ के जुल्म जबर जो है वो रियासती खुद ही कह भी तो रहे ना कि अगर अपने माशरे में गरीब लोगों का, गरीब तबके का ख्याल नहीं रखेंगे तो तरक्की नहीं कर सकते। मारदा मकसद है ना। किस गरीब की बात करते हैं? 20 रुपए 15 रुपए की सब्सिडी के लिए पूरा घंटा खवातीन, बूढ़े, मर्द, औरतें मुझे बताएं कि लाइनें लगा के वो 20 रुपए की भीख बकारी बना दी है। अभी तो अदालत ने बुला के उनको नोटिस किया है कि ये खत्म करे लाइनें, ये 15 रुपए के लिए तस्लीम ना करे इंसानियत की। तो मुझे कहेंगे और क्या मैसेज चाहिए इनको? क्या क्या इनके जो है वो स्कैंडल आ रहे हैं देखकर, क्या कर्जा लेते जाओ, कर्जदार मुल्क को इतना कर दो कि ना खुद तेन में गैरत रहेगी ना कौम को गैरतमंद छोड़ेंगे। जब गैरत निकाल लेंगे तो बीच में मुझे बताओ ये बाकी किस चीज का क्या रोना है? कि ईमान देखो ना, ईमान के अरकान क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात। तो अगर ईमान ही भी इससे निकल जाए तो ना रोजा फर्ज है, ना नमाज फर्ज है, ना हज फर्ज है, ना ज़कात फर्ज है। तो ईमान के ऊपर जीना जो है ना वो इमाम को सिखाना चाहिए। इक़्तिदार में आकर हुक्मरानी करने वालों को ये चाहिए कि इमाम को सही डायरेक्शन दे कि भैया के मुसलमा आपने किस तरह जिंदा रहना है। जी, इन्होंने बताया कि अवाम को सही डायरेक्शन दें, उनका ये फर्ज बनता है बताना। आप क्या कहती हैं इस हवाले से? और मेरे हिसाब से इनकी बातें 100% सही हैं। अब आप ये देखें, इखलाकियात का दर्स वो शख्स दे रहा है जिसके करीब से नहीं गुजर के ये इखलाकियात। अब पार्लियामेंट में हम देखते हैं क्या हो रहा होता है। सबसे ज़्यादा अब देखें, हुकूमत के ऊपर जो एग्जेक्टिव होता है उसकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। आप लोगों के अंदर बर्दाश्त का मात्रा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपने अपने आप को साबित करना है कि मैं जिस मकाम पे इस वक्त हूँ और मुझे उसका अहल साबित करना है। आप तो आज तक सॉरी अपनी अपोजिशन को साथ लेके नहीं चल पाए। आपके अंदर इतना कमियां हैं, इखलाकियात की कमी है, नालायकी है बहुत ज्यादा। कोई इनका एक भी वजीर, मिनिस्टर अहल है? आए दिन शफलिंग इनकी खत्म नहीं होती है। क्यों करते हैं? एक की चोरी छुपाने के लिए दूसरे को बिठाया जाता है ताकि वो बात डिस्कशन के काबिल ही ना रहे। नया जो आए वो कहे भी मेरे होते हुए तो कुछ भी नहीं हुआ, तो पिछला कर गया होगा। अब ये सारा इल्जाम तो पिछली हुकूमतों पे भी दे रहे हैं, और 2.5 साल हो गए इन्होंने भी कुछ, इन्होंने क्या डिलीवर किया है? कम अज कम मुस्लिम लीग नून के टाइम पे लोग इस तरह से दहाड़े नहीं मार रहे थे, भूखे भी नहीं मर रहे थे। महंगाई का ये आलम था, काफी चीजें बेहतर थी। ये आलम नहीं था, लोग इजीली अफोर्ड करते थे अपनी फैमिलियों को, उनकी हेल्थ का ख्याल किया जाता था, और हॉस्पिटल्स में फ्री मेडिसिन मिलती थी, और हॉस्पिटल्स की सर्विसेज को बहुत इम्प्रूव किया गया था। और फिर आप ये देखें, अब गरीब बीमार को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। वो जाते हैं, कह रहे हैं ना कि हमने हेल्थ कार्ड दे दिया। बिल्कुल नहीं। हेल्थ कार्ड तो सबसे पहले स्टार्ट नवाज शरीफ ने लिया था। वो बहुत हेल्थ कार्ड तकसीम करके कहते, लेकिन उनका जो प्लान था उस तक तो ये पहुंच भी नहीं सकते। अब आप ये देखें, हॉस्पिटल्स अब ये प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, जो हॉस्पिटल प्राइवेटाइज हो जाएंगे, जो मरीज वहां पे तो लोग चेकअप भी फीस के साथ होंगे, टेस्ट भी उनकी अपना पेमेंट के साथ होंगे। और पहले ट्यूबरकुलोसिस हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा कॉज ऑफ डेथ जो है वो टीबी से है। टीबी की मेडिसिन फ्री थी,
इन्होंने आते ही बंद कर दी। क्या वो मरीज जिनकी मेडिसिन बंद हुई वो क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस का शिकार होगा या नहीं? और क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस जो है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। लोग गए, अपनी लाइफ से गए। वो तो कहते हैं मैंने गुर्बत खत्म करनी है। वो गरीब लोग मरेंगे तो गुर्बत खत्म होगी, वो आसानियां पैदा करके थोड़ा गुर्बत खत्म कर रहा है। और बाकी रही बात इनके यू टर्न के हवाले से क्या कहती हैं? मैं इनके, वो तो कहता है कि जिस जो वो बड़ा लीडर वही है जो यू टर्न लेता है। अब आप मुझे ये बताएं, एक एग्जेक्टिव होने के नाते हमारी जुबान से वो बात निकले जो सॉलिड हो, जिसके ऊपर जिसको आप डिफेंड कर सकें, हाँ, आप उसको निभा सकें। हाँ, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स अगर आपको अपने प्लान में कोई कमी पेशी करनी पड़े तो वो एक अलग चीज है। वो भी आप सबको एतमाद में लेके बैठे चले कि इसमें हमें ये कमी आएगी और हमें यूं कर लेना चाहिए। जब इस बंदे की सबसे ज्यादा नाकामी और बदकिस्मती, इनको अपोजिशन ने इसे पूरी हुकूमत करने का मौका दिया, लेकिन ये किसी को ऑन बोर्ड लेके नहीं चला। ये भी इसकी नाअहली और इसकी नाकामी की वजह है। जब आप एक डिपार्टमेंट चलाते हो, आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों को साथ लेके नहीं चलते, आप कभी कामयाब जी। मांडला साहब, डॉक्टर साहब का कहना है कि उन्होंने तमाम जमातों ने इनको मौका दिया, इनका साथ दिया, लेकिन ये किसी को साथ लेके नहीं चले। देखिए, बात यह है कि हम तो अवाम की बात करते हैं, ये तो पार्टियों की। डॉक्टर साहब चूंकि खुद असेंबली में है तो वो बेहतर जानती है कि असेंबली को किस तरह रूल ऑफ बिजनेस है, किस तरह उनको चलाना है, किस तरह चलना है। और उस खान को भी पता होना चाहिए कि ये जहाँ पार्लिमानी निज़ाम होता है तो पार्लिमानी निज़ाम में, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है ये करप्शन के ऊपर बेस करता है। कोई भी आप गांव देहातों में जाके देख लें, एक काउंसलर को लें कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट करता है, घर की गाय भैंस बेच के वो बेचारा इलेक्शन लड़ता है। फिर अगर चेयरमैन यूनियन काउंसिल को लें तो मेरा ख्याल आजकल उसका भी 2-4 करोड़ रुपया लग जाता है। सही कह रहे हैं। फिर अगर एमपी इलेक्शन लड़ता है तो आजकल 25-30 करोड़ तक उसका फिगर जाता है। एमएनए के जो हलके हैं, बाज हल्के अरब से तजावज कर जाते हैं। और खबरों में आते हैं, मीडिया की जीनत बनते हैं कि 1 अरब से ज़्यादा जो है ना किसी ने खर्चा कर दिया, कोई मोटरसाइकिल बांट रहा है, कोई क्या बांट रहा है। फिर अभी सेनेट में आपने देखा कि सेनेट में किस तरीके से माल मंडी मवेशियाँ जो है वो खुली होती है, कैसे खरीदारी होती है, कैसे खरीद के सेनेट बनते हैं, चेयरमैन बनने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा निज़ाम चूंकि करप्शन के ऊपर बेस करता है, तो जब लोग इन्वेस्टर पीछे होते हैं तो वो किस लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं? कई दफा ये प्राइम मिनिस्टर भी कह चुका है, भाई जो भी बिजनेसमैन है वो किस लिए बिजनेस करता है? वो इसलिए करता है प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पाकिस्तान में सबसे अच्छी जो इंडस्ट्री है, वो जो सियासत है, ये सबसे अच्छी इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री के तरीके से अगर वो चाहेगा सोलो फ्लैट, तो वो यहाँ चल नहीं सकती। चला के देख ले, अभी जंगीर तरीन ने 15-20 बंदे लग किया ना, वो टांगे नीचे से खड़क रही हैं। को किसी और को फंड नहीं देगा, 4 बंदे और जो है बना लेंगे। ये पार्लियामेंट निजाम है। इस निजाम में बेहतरी की या गरीब बंदे की कोई भलाई नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। ये जी वो फलां दौर था तो उसने ये फलाने दौर देख लिया। जरदारी, जब जरदारी की हुकूमत थी तो ये डॉक्टर साहब वाले क्या कहते थे, हम इनका पेट फाड़ेंगे, गलियों में घसीटेंगे, जब उल्टा लटकाएंगे। तो जब लटकाने का नंबर आया तो जनाब बहादुर उसके ड्राइवर बन गए। ड्राइवर बन के उनको बोला नहीं, 72-73 किस्म की जो डिशे है वो खाने के उन्होंने रेस्टोरेंट में पका के जनाब जरदारी साहब को साथ ले जाए कि जनाब आज अभी हमारी टांगें खड़क रही हैं तो हमारी टांगों को थोड़ा जो वो हौसला दो। तो अभी देख ले वो नारे कहाँ गए। ये टोटल अवाम बेवकूफ बन रही है। अभी बने कहाँ जाए, जो ना भी वोट देंगे, जिसको 10 वोट मिल भी जाएंगे वो भी एमएनए बन जाएगा, ना भी देगा। अभी ये डस्के का इलेक्शन हुआ है तो 43% जो है ना अवाम ने आके अपने वोटों का हक इस्तेमाल किया, यानी कि 57% अवाम ने रिजेक्ट किया इस निजाम को। और ये जो जीती है हमारे शीर इफ्तिखार साहबा, तो उनको कितने मिले हैं? 22%, यानी कि पूरे हल्के की नुमाइंदगी 22% वोट लेके। और बाद हल्के आप बलोचिस्तान में देखें,
कोई 2000 से कोई 1500 से एमएलए बढ़ जाता है तो वो आके हुक्मरान बन जाता है, और फिर इस आवाम के वो फैसले करते हैं जिनके अपनी हर चीज बाहर से आती है। किसी मैंने बताया कि 2-3 तरीके हैं कि जब गवर्नमेंट ये ऐलान कर दे कि किसी पार्लियामेंटेरियन, किसी ब्यूरोक्रेट, किसी भी महकमे का क्यों नहीं है, सबका इलाज सरकारी अस्पतालों में होगा तो अस्पताल ठीक हो जाएंगे। किसी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तमाम के गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ेंगे, तो मेरा ख्याल है ये सब स्कूल में स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएगा। यानी कि हमारे जैसा बंदा, मैं रोजाना चीखता हूँ आके टीवी पे, मेरे गांव में आज तक 6000 आबादी है, नून लीग की सरासर लाइनों के लाइने एमएनए एमपीए, आज भी वहां एमएनए एमपीए नून लीग के हैं, प्राइमरी स्कूल नहीं है बच्चों का। 6000 आबादी के ऊपर मुझे बचाओ 2-3 कॉलेज भी होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, अभी अस्पताल हमारे देहातों से निकल के कोई सियालकोट जाएगा, कोई जनाब जाएगा लाहौर, तो ये कौन से इलाज थे पहले कि बंदे को पहुंचने के लिए एक बंदे ने अगर मुल्तान से लाहौर आके इलाज कराना है तो उस मुल्तान के लिए किराया उसको कौन देगा? ये तो 200-400-500 रुपया मजदूरी कमा के खाने वाले लोग हैं, तो उनकी तरफ तो किसी की तवज्जो ही नहीं कि जी ये कर लो, वो कर लो, लंगर खाने खोल दो, ये कर लो। ये तो सारे खाने के टसल है, ये भी दुनिया खा के, जैसे वो नून लीग की हुकूमत थी तो वो तंदूर लग गए जी, सस्ते तंदूर आ गए। वो गांव देहात में बेचारा तंदूर, वो तंदूर पे पहुंचेगा उससे ज्यादा तो जनाब उसका किराया लग जाएगा। जैसे ही अभी यूटिलिटी स्टोर के ऊपर घर के बहुत करीब तरीन चीज होती है। ये ना कहें कि होते हैं। ये डॉक्टर साहब मैं देखो, बात ये है कि आप लोग जितने हम लोग इधर बातें करते हैं, हम बड़े शहर को फोकस करते हैं, जबकि 80% आबादी आपकी देहाती आबादी है। किस गांव में, किस देहात में जाके कोई एक बंदा मुझे बता दे कोई जरूर लगाओ। गांव देहातों में आज कोई बंदा बता दे कोई यूटिलिटी स्टोर हो, गांव देहातों में कोई आज मुझे बंदा बता दे कि जहां कोई सस्ता बाजार लगाओ। सस्ते बाजार में जब तक उसने पहुंचना है उतना तो उसका किराया लग जाता है, वो तो अपने गांव की दुकान से कोई सौदा सलाह। हमारे साथ है, उनको भी लाइन पे साथ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अदीबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। और मैं इतनी देर से इनकी बातें सुन रही हूँ, और ये मुझे तो लगता है जैसे आज आपने खास एक प्रोग्राम किया है कि अब पीटीआई की धुलाई करनी है आज और लोगों को बुलाया। बिल्कुल ऐसी बात नहीं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा, जो ये यू टर्न जो वज़ीर-ए-आज़म जहां से हमने बात स्टार्ट की थी, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपने दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी, आप बताएं। यू टर्न की बात नहीं है, असल में ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको फैसले लेने पड़ते हैं। अब जब वो वाला बात की उन्होंने पिछली स्पीच में, जो बोला कि जी इकोनॉमी का खतरा था, इकोनॉमी खराब हो रही थी, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है आजकल हमारे पास कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जहां पर इंसानी जान की हुर्मत का मामला आता है, वहां पर आप हमेशा अपनी अखलाकियात को तरजीह देते हैं। तो इन बातों को आप ये मत समझें कि ये आपस में इनका क्लैश है या ये बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है या ये यू टर्न है, ऐसा नहीं होता। और ये कि इकोनॉमी की अगर आप सूरत हाल देखें तो कोरोना की वजह से सारी वर्ल्ड में इकोनॉमी बिल्कुल डेड हो गई थी, हर तरह का कारोबार बंद हो चुका था पूरी वर्ल्ड में। अमेरिकन जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो गई थी और गुर्बत हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी, ये कोरोना की वजह से जो पिछले 1-2 सालों में जो सिचुएशन रही। तो उसका सारा इल्जाम देना कि जी ये पीटीआई की कारस्तानी है या पीटीआई की वजह से हुआ है या इस हुकूमत की वजह से हुआ है, जैसे कि आप लोग बोलना शुरू हो गए हैं जी ना अहल हुकूमत, ये इस तरह की चीजें जो हैं ये आपके मसाइल को बढ़ावा ही देती हैं, ये कोई सुलझाती नहीं है। तो एक अच्छे तरीके से मुतवाजन वे में तवाजुन के साथ अगर आप बात करें, आप क्रिटिसिज्म भी करें, वो भी काबिल कबूल है, लेकिन हर वक्त का ये चीखम धाड़ और हर वक्त ये इल्जाम तराशी, दिस इज नॉट फेयर ना। तो मैं आपसे यही इल्तजा करूंगी और रिक्वेस्ट है मेरी कि ना आप इन चीजों को जरा अच्छे वे में और एक मुसहालियाती तरीके से इन चीजों को आप देखें, और सारा ब्लेम जो है वो पीएम पर डालना इस तरह से कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। महंगाई की बात ले लें या अब देखिए अभी एक साहब ये बोल रहे थे जी गरीब खाने बना दिए, जी गुर्बत खत्म करने के लिए लंगर खाने बना दिए। अगर आप देखें कि लोग भूखे मर रहे हैं तो उनको खाने के लिए आपने देना तो है, ये एक हुकूमत की जिम्मेदारी है ये। और जैसे कि हम क्लेम करते हैं कि मदीना की रियासत बनाएंगे इंशाल्लाह, तो ये उसी की तरफ एक कदम है कि आप इंसान की जान की हुर्मत का और उसकी भूख का और उसकी जरूरियात का आप ख्याल रख रहे हैं।
تو یہ اگر ہمارے ساتھ مسئلہ اصل میں یہ ہوا ہے کہ اگر ہم کوئی اچھا بھی کام کرتے ہیں تو یہ لوگ اس میں بھی برائیاں نکال لیتے ہیں. یہ ہماری ایک اور جو ہمارے ساتھ پرابلم ہوئی کہ جو ہی حکومت آئی ہے اتنے کیوس سے اور اتنی زیادہ ڈسپیرٹیز سے اس کو لڑنا پڑا ہے. ساری جو اپوزیشن ہے وہ خلاف ہو گئی ہے, ہم مل کے کہ جی وہ ہمارا احتساب نہ ہو جائے یا ہمیں حساب نہ دینا پڑے اپنی لوٹ مار کا. اس کی وجہ سے سارے اکٹھے ہو گئے, ہر بات میں انہوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی, ہر وقت کوئی نہ کوئی انہوں نے شوشہ چھوڑا ہوتا ہے, اور جو اچھی باتیں ہیں ان کو کوئی اس طرح سے دیکھتا ہی نہیں ہے, ہر بات کو ایک محاذرائی ہر وقت بنا کے. اب جو آپ کے یہ نون لیگیوں کے وہ جو ہیں سابق وزیر اعظم, وہ جس طرح سے انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بات کی کہ جوتا ماروں گا تو یہ کروں گا وہ کروں گا, آئی مین یہ کوئی انسانیت کی کوئی وہ کر رہے ہیں, کوئی مثال پیش کر رہے ہیں. کون سا وزیر اعظم اس طرح کی بد زبانی اور غیر پارلیمانی الفاظ میں بات کرتا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے اس طرح کی بات کرتے ہیں. یہ اپنی گریبان میں جھانکیں پلیز, آپ لوگ دیکھیں, اب نون لیگ دیکھیں, پی ٹی آئی اور یہ سارے لوگ جو پیپلز پارٹی ہے, یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں اور کیا ان کا بیہیویئر ہے. اور ایک الزام تراشی جو ابھی یہ بولی کہ جی ساتھ لے کے نہیں چلتے, تو کیا ہم نے پی ٹی آئی نے ان سے ریکویسٹ نہیں کیا کہ قانون سازی میں آپ ہماری ہیلپ کریں, آپ ساتھ کھڑے ہوں تاکہ آپ اپنے ملک کے لیے کوئی بہتر پالیسی لا سکیں, کوئی سسٹم کو بہتر کر سکیں. تو یہ جب آپ ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوتے ہیں اور ہر وقت کی الزام تراشی بھی چل رہی ہے, تو ان باتوں میں اب یہ ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی ان کا تو ایک غصہ اور ان کا جو صدمہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا, اور وہ پتہ نہیں کب اور کیسے ختم ہوگا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ آخر چاہتے کیا ہیں. اور میں آپ کو دعوے سے کہتی ہوں ادیبہ کہ اگر اس وقت میں اور یہ کورونا کے ٹائم میں اور یہ سارے جو اتنے کیوس میں, پہلے تو وہ مولانا ایک وہ لے کے آ گئے پہلے سال میں جو ہمارا تھا, تو اس میں مولانا دھرنا کر دیا اسلام آباد میں کہ جی حکومت ختم کریں, جی ان کو بنا دیں وزیر اعظم. پھر یہ کورونا آ گیا, اس کے بعد اب یہ پی ڈی ایم شروع ہو گئی. آئی مین ایک لمحہ انہوں نے کوئی کہیں چین کا لینے دیا ہے, کہیں پر انہوں نے آرام سے بیٹھ کے بات کی ہے کہ جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہم ملک کی بہتری کے لیے, ملک کی فلاح کے لیے, اپنے ملک کے لیے آپ کوئی بیٹھ کے قانون سازی کریں, کوئی اچھے کام کریں, کوئی پالیسی بنائیں. تو یہ مستقل ہی ان کی حوث کی یہی ہوتی ہے لگا ہوا کہ جی بس ہر بات کو کرٹیسائز کرنا ہے, ہر بات کو کرٹیسائز. بھئی اس طرح کے نیگیٹو رویے کے ساتھ نہ تو اپوزیشن چل سکتی ہے اور نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی رول ہے آپ کی حکومت میں یا ملک کو سنوارنے میں, یا اپوزیشن کا ڈیفینیٹلی ایک بڑا رول ہے. کرٹیسزم کی بات کی جا رہی ہے کہ ہر جگہ پہ کرٹیسزم کی جاتی ہے, ہم ان کو مواقع دیتے ہیں لیکن اس کو وہ نہیں فیس کر رہے ہیں, کاؤنٹر نہیں کر رہے ہیں. مانڈا صاحب دیکھیں ادیبہ, بات یہ ہے کہ جیسے محترمہ بتا رہی تھی تو یہ اخلاقیات کی بات, تو اخلاقیات تو تمام جماعتوں کا جو ہے نا, تمام جماعتوں کا اخلاقیات جو ہے نا وہ سب نے دیکھ لیا کہ جب یہی مسعود پرائم منسٹر کیا کہتے تھے یہاں چوک میں اپنے ہاتھ سے پھانسی لگاؤں گا, وہ بھول گئے نا یہ سارے الفاظ, یہ جوتوں کا نمبر ہے یا کوئی بھی کام ہے. تو ابھی اگر اس نے کہا ہے شاہد خان عباسی نے سپیکر کو کہ میں جوتا اتار کے ماروں گا, تو آج فواد چودھری نے کیا کہا کہ جناب ایک جوتا مارو گے تو 100 جوتا بچے گا. میں نے کوئی کسر تو کوئی بھی نہیں ہے, کسی طرف سے نہیں ہے. تو اخلاقیات کی باتیں صرف ٹیلی ویژن کے اوپر بولنے کے لیے رہ گئی ہیں. عملاً جو سب کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ سیم ایک جیسا ہے تمام. وہ میں نے پہلے تشریح کر دی, چونکہ سسٹم ہی ایسا ہے. اس سسٹم میں جو چاہتے ہیں نا یہ سب ایک حمام میں ننگے ہیں, تو وہ ایک ہی جیسا ماحول ہے سب کا. یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کوئی اچھا بن رہا ہے کوئی برا بن رہا ہے. اس سے علاوہ عملاً مجھے بتائیں نا عملاً کیا ہوا ہے. عملاً یہ ہے کہ قرضہ آپ کا دن بدن بڑھ رہا ہے. کوئی بھی حکومت آئی ہے نا, پچھلی حکومت سے زیادہ قرضہ اس نے لیا. پیپل پارٹی آئی, پھر نون لیگ آئی تو پیپل پارٹی سے ڈبل لے لیا, ابھی پی ٹی آئی آئی ہے تو یہ اس نے پچھلی جماعتوں سے ڈبل کر دی ہے. مجھے یہ بتایا کہ یہ قرضے کے بغیر تو نظام ان کا نہیں چلتا. ایک دن کا 8 ارب آپ لوگ سود دے رہے ہو. عیاشیاں ان کی دیکھیں آپ, مزدور کی طرح آپ نے, یہ جتنے پارلیمنٹیرین میں ان سے مخاطب ہو جاؤں,
کہ 15,000 रुपए की हुई है और अपने प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मेरा 2 लाख पे गुजारा नहीं गुजारा है। नहीं होता है। तो कहाँ इंसाफ, कौन से इंसाफ तलाश कर रहे हैं ये? कि मैं तो कहता हूं कि आप बोल्ड स्टेप ले ना, कोई वाम को पता चलेगा आप वाम के लिए बोलते हैं, आप मुल्क के लिए बोलते हैं, आपको मुल्क के लिए स्टेप उठाते हैं, तो कोई उठा के दिखाएं कि आपके ऊपर अंबार कर्जों का कर्जे ले लेके आप अपनी यशियां तराहे और मरात ले रहे हैं। तो मुझे बताएं कि दरस आगे अवाम को देते हैं, किस चीज का अवाम को दरस देना? अवाम को मिला क्या है इस तक? कोई पता मुझे बताए कि गरीब आदमी आज भी सिसक रहा है, ना उसके लिए दवाई है, ना उसके लिए कोई अस्पताल है, ना उसके लिए एजुकेशन है, ना उसके लिए इंसाफ है। बड़ों के लिए इंसाफ भी अजीब है, उनके लिए प्रोटोकॉल। देखो ये छलनी हो गए 2 दिन पहले लोग, ये वाम पाकिस्तान की वाम यही है ना, और आप इसके अगेंस्ट जाएं तो दूसरी तरफ बड़े बड़े माफियाज, स्कैंडल्स, और उनके दरवाजे जो है बड़े बड़े आईजी खोलते हैं, उनको सलूट लगाते हैं। वो पिछले दिनों देखा है जेआईटी में, वो मरियम आई तो पेंसिल गिर गई, तो एक एसपी साहबा उठा के पेंसिल पेश कर रही है कि ये मुजरिम साहबा ये लो पेंसिल। ये तो निजाम है आपके मुल्क का, और दरस देते हैं आके गरीबों को। भाई गरीबों की छतरोल, ये 2 दिन पहले आपने ये सोशल मीडिया के ऊपर सुनी नहीं बातें, किस तरीके से लटा के छतरोल कर रहे थे कि भाई वो क्या आगे से नारा क्या आता था, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सर गोलियां बची हुई हैं, की है ये सब वाम का मुझे बताओ कि ये सब वाम के जज्बात कि वाम को क्या दिया है? वाम को तो एक है, मुझे बताएं कि ये अभी 2 दिन 4 दिन पहले एक पर्चा होता है, यहां ही अब्दुल्ला हमीद गुल के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा इसी हुकूमत ने काट दिया। जब काटा किस पे जी, उसने जी बढ़ावा दिया जी हम आपके साथ हैं। तो अगर ये एक पाकिस्तान है तो फजलुर रहमान ने भी यही ऐलान किया कि मैं जनाब तरीके लब्बैक वालों के साथ हूंगा अगर वो आते हैं तो। मनरीब साहब ने भी यही कहा, उसने जो सराजुल हक उसने भी कहा, बाकी जिसने कहा उनके ऊपर पर्चे मुझे बताएं कि दौरा में कि जहां किसी का 4 बंदे नहीं है जिसके पास, उसके ऊपर आप पर्चा भी कर दो, दहशतगर्द भी बना दो। किस तरीके से? इस तरह निजाम थोड़ा चलेगा कि दहशतगर्द देखो ना, उसकी गिरफ्तारी होती है हाफिज साहब की 12 तारीख को। अगर 12 तारीख से पहले किसी किस्म का इंतशार हुआ है, किसी किस्म का जो है ना कोई धरना हुआ है, तो मैं कहता हूं कि सारी जिम्मेदारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर जाती। अगर उससे पहले जो पार्टी वादा खिलाफी करेगी तो वही दहशतगर्द बना सकते हैं आप। ताकत है आपके पास, जब हुक्मरानी होती है ताकत होती है, अदारे होते हैं, वो भी गरीबों के बात की मांडला साहब ने। तो ये इस हवाले से क्या कहेंगे? वादा खिलाफी तो हमें भी नजर आ रही है, सब देख रहे हैं इस चीज को। जी ये क्या बात कर रही है, आवाज नहीं आई आपकी। मैं ये कह रही हूँ कि जो इन्होंने वादा खिलाफी की बात की कि इन्होंने हर एक जगह पे अपनी जो उन्होंने मुआहदे किए, जो उन्होंने ऐलानात किए, उस पर वादा खिलाफी उन्होंने की, जिस तरह से अभी मांडला साहब जिक्र कर रहे थे। तो आप क्या कहते हैं? देखिए आपके पास कोई एग्जांपल होंगी ना इसकी कि कहाँ कहाँ वादा खिलाफी की, क्या 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 ऐसे इल्जाम तराशी करने से कि जी वादा खिलाफी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इससे ये मसाइल का हल नहीं है। अच्छा अब मुझे आप ये बताएं, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह वो उनका जो स्टैंड है, उनके जो दिल में है इज्जत है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो क्या हमारे दिलों में नहीं है? क्या हम मुस्लिम नहीं है? क्या हमारा ईमान उनकी मोहब्बत और इज्जत के बगैर कंप्लीट हो जाता है? ऐसा नहीं है। लेकिन वो इसको अथॉरिटी ना समझे ना कि वही सारे हकूक उन्हीं के पास हैं कि जी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत का सिर्फ उन्हीं को ख्याल है और दूसरे मुस्लिम नहीं है या व्हाटएवर, उनके दिलों में कोई मोहब्बत नहीं है। ये तरीका गलत है। और आप देखिए कि फ्रांस के खिलाफ पूरी वर्ल्ड में कहाँ पर इतने प्रोटेस्ट हुए हैं, जहाँ आप इनकी वीडियो चलाई नजर आ कि कितनी ये लब्बैक वालों ने कितनी गोलियां चलाई हैं, कितने गाड़ियां इन्होंने तोड़ी हैं। हम खुद देख के हैरान परेशान हो गए। एकदम कोई बात हो ये स्टेट के खिलाफ एक्शन ले लेते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। आप ये प्रोटेस्ट करें, आपकी पहले बात हुई, आपने कहा कि जी हम फ्रांस के सफीर को हम हटाएंगे और उसके लिए कानूनी तरीका है कि आप हटाएं, लेकिन क्या उसका ये तरीका है कि आप स्टेट पर हमलावर हो जाएं? आप क्योंकि आपके पास चंद लोग ज्यादा आ गए हैं तो आप उठ के स्टेट के अगेंस्ट खड़े हो जाएं? ये कोई तरीका नहीं है। ये स्टेट विद इन द स्टेट नहीं चलेगी। और ये हमेशा ये हमेशा हमारे मुल्क में ये फॉरेन एजेंडा होता है जिसको ये एग्जीक्यूट करते हैं आगे। लाल मस्जिद वाला वाकया हुआ,
कि उसमें भी एक ग्रुप को कहीं से फंडिंग आई और उनको स्टेट के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। और हमारे साथ असल में डबल क्रॉस हो रहा है, गेम्स हो रही हैं हमारे साथ। जब हम एक इस्लामिक कानून लाते हैं उसमें हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं लोग, हमारे मुल्क के अंदर से भी बाहर से भी, ये जी प्रिमिटिव है, ये जी एक्सट्रीमिस्ट है जी, ये तो वो है टेररिस्ट है और फलां है। जब हम इस्लामिक कानून लाते हैं उसमें भी हमें मसाइल का सामना होता है। जब हम इस तरह की दहशतगर्दी जो रियासत के अगेंस्ट दहशतगर्दी होती है उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं, उस पर भी हमें ही टारगेट किया जाता है, यहूदी एजेंट भी हमें कहा जाता है, और बाहर जो हमें वेस्ट में जो हमें नारा मिलता है कि ये जी वो है फंडामेंटलिस्ट है, वो भी हमें को सुनना पड़ता है। एक्चुअली हमें हर महाज पर, और एक नहीं दो नहीं 10 महाजों पर एट अ टाइम हमें लड़ना पड़ रहा है, अपने विद इन द कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री हमें अपनी रेप्यूट पे बनानी पड़ी। और अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर हमारी जान माल और जाने कुर्बान है हमारी, उनकी हुर्मत के लिए किसने आवाज उठाई? यूएनओ ने, जहाँ पे स्पीचेस हुई, जहाँ पे बात हुई, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई ना कि क्यों कार्टून बनते हैं, क्यों हम उनकी इज्जत का ख्याल नहीं रखा जाता, जबकि मलका बरतानिया जो हैं उनके खिलाफ बात करना जुर्म है वहां पर बरतानिया में, और हॉलोकॉस्ट पर बात करना जुर्म है वहां पर अमेरिका में और बहुत कंट्रीज में। तो हम बैठ के अपनी नबी की हुर्मत के लिए कोई कानून नहीं बना सकते, और हम उनको क्या वेस्ट को इस बात पर मजबूर नहीं कर सकते कि वो इसकी तकमील करें और उस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करें। हम ऐसा कर सकते हैं, उसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। उसके लिए ये नहीं होगा कि रियासत कोई कानून बनाए तो आपने देखा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का कानून बनाया तो वो ब्लास्फेमी लॉ के खिलाफ ये नून लीग और पीपल्स पार्टी, आपने देखा कि उन्होंने क्या वोट दिए थे? उन्होंने वोट नहीं दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, एक तो उनको ख्याल नहीं है इस बात का कि जी ये वो चाहते हैं कि जी वो फंडामेंटलिस्ट ना बन जाए लोग। बातें करने का कोई मतलब नहीं होता, हकीकत क्या है वो हर बंदा जानता है। मुझे ये बताएं, इसी जमात को, लब्बैक को फ्रंट पे लाया कौन था जब ये खुद धरने में थे? इन्होंने हमारा जो मजहब कार्ड इस्तेमाल करवाया इन लोगों ने, इसी पार्टी से, ऐसे ही है ना। और इसके बाद इनकी स्पीचेस सुन ले, शेख रशीद की स्पीचेस सुने और गिरा दो, जला दो, बंद कर दो, ये तहरीक लब्बैक वाले आपको खा जाएंगे, ये स्पीचेस है इनकी। तो क्या ये हेट स्पीचेस इन लोगों को प्रोवोक नहीं कर रही थी? लेकिन देखिए मुस्लिम लीग नून ने भी तो काफी आवाम को जिस तरह से जो मकरूज हैं, ये स्टार्ट से है ना, ये नहीं, जब ये धरने पे बैठे हुए थे और उस वक्त इमरान खान क्या कह रहे थे कि मैं फलां तारीख को आऊंगा तो फलां जगह अपना बंद करूंगा, फलां बंद करूंगा। मुस्लिम नून की बिल्कुल नहीं, अब हम इस पार्टी की बात कर रहे हैं, लब्बैक की, जिसे इन लोगों को इतराज है कि जब हम कोई हमारी अपना रियासत के अगेंस्ट कोई भी खड़ा हो जाए तो हम उसको कुचल देंगे। अब इन्होंने कुचलने वाला ही हाल किया है। जब ये लोग उनको ला के मुस्लिम लीग नून के खिलाफ रिलीजन कार्ड खेल रहे थे, क्या उस वक्त इन्होंने नहीं खेला था? फतवे नहीं लगवाए थे कि भाई वाजिबुल कत्ल है? अच्छा, तो उस वक्त अब अगर वो लोग इतने एग्रेसिव हो गए, इनके आगे आ गए, तो फिर गुस्सा किस चीज का? और फिर आप ये देखें, उनके हेड को, आप अमीर को आप बिफोर टाइम अरेस्ट करते हो तो क्या कोई रिएक्शन नहीं आएगा? फिर आप क्या सस्पेक्ट कर रहे होते हो कि देखे जी 20 तारीख की डेडलाइन थी, उसको 15 तारीख को अरेस्ट किया, 12 को ठीक हो गया। और ये जो बिफोर टाइम लोग निकले हैं 20 तारीख से पहले, ये इस वजह से निकले हैं। बात को छेड़ा तो खुद आप लोगों ने फिर उनके साथ एक मुआहदा तय किया और आप उस मान लिया पीटीआई जो है बड़ी गंदी है, उसने नहीं, अब हम इस फैक्ट्स को देख रहे हैं जिन्हें ये बयान कर रहे हैं। सारी बात माननी, माना साहब आप बताएं कि मुस्लिम लीग नून देखिए बात पता क्या दीपा, बात बंदूक नहीं है, बंदे एक जैसे हैं सारे। सिस्टम आपका ऐसा है कि सिस्टम में कोई बंदा, बार-बार सिस्टम की बात कर रहे हैं, है इस खराबी सिस्टम की है।
کہ یہاں انسانوں سے دیکھو نا, ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان کو اگر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کی سپیچیں جو وہ درس تو اچھا دے سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں تقریروں سے نہیں شمشیروں سے ہوتی ہیں, ہمت سے ہوتی ہیں, جرت سے ہوتی ہیں. وہ جرت کے لیے نیچے آپ کا سٹرکچر گرا پڑا ہے. دیکھو نا وہ تو نشاندہی کر رہے ہیں جب سے آ رہے ہیں کہ یہ جناب منی لانڈرر ہے, منی لانڈر باہر پھر رہے ہیں. سانے ماڈل ٹاؤن کے قاتل ساری دنیا کے کیمروں میں سیف ہیں, کس نے گولیاں ماری, 100 بندہ زخمی, لیکن آپ کا سسٹم کمزور ہے. سسٹم یہ ہے کہ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. منی لانڈر باہر محلات بنا کر بیٹھے ہیں, مفرور اعظم وہاں ہے, دیکھو آپ کا نظام اس کو پکڑ نہیں سکتا. غریب آدمی کی چترول 2 دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر کیسے ہوتی ہے. آپ کے سسٹم کا فالٹ ہے, بندو کا فالٹ نہیں ہے. نہیں, یہ سسٹم بات یہ ہے کہ یہ سسٹم کیسے کون بدلائے گا. ان کو سوٹ کرتا ہے یہ سسٹم. بھائی 4-4, 5-5 لاکھ روپیہ تنخواہیں ہیں, کمیٹی میں جاؤ تو لگ لاؤنس ہیں, ٹی اے ڈی اے لگ ہیں, یہ سوٹ کرتا ہے. یہ بدلیں گے, یہ ڈاکٹر صاحب پاس بیٹھی ہیں, یہ 15,000 کے اوپر کام کریں گی, کوئی نہیں کر سکتا. بھائی اگر ایک جیسا نظام چاہتے ہو تو کرے نہ لانا. یہ بڑے بڑے بیوروکریٹ, بڑے بڑے محلات میں رہنے والے, بڑی بڑی مرات لینے والے, یہ نظام تو پھر غریبوں کو دراصل لیکچر سننا ہے, وہ سناتے جو. تو عمران خان ماہر ہے لیکچر سنانے کا. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. وہ کل میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ ایک گاؤں میں ایک مولوی ہوتا ہے, غریب ترین, 5-7 ہزار روپیہ اس کی تنخواہ ہوتی ہے. زمیندار نے کہا یار یہ ایکڑ ایک نا, یہ میرے سے زمین لے لو, اس کی کاشت کرو, آپ کا گزر بسر اچھا ہو جائے گا. فصل ہوئی تو وہ اس میں گدھا روز آگے فصل کھا جاتا تھا. وہ مولوی پتا کیا کرتا تھا, بیٹھ کے جناب دب درود کرنا, صورتیں پڑھنی شروع کر دی, لیکن وہ گدھے کے اوپر اثر ہی نہ ہو. پھر جناب دوسرے دن کو صدقہ کرے, کوئی جناب کو مرغی کو انڈے کا کہ یار یا اللہ کو کرم کر. وہ ایک دن ایک بندہ گزرا, گدھا جو ہے وہ چل رہا تھا. اس نے بولا بھائی تو کیوں بیٹھا, تیری تو فصل تباہ کر دی اس نے. اس نے بولا نہیں میں ویسے تو نہیں بیٹھا ہوں, میں تو صورتیں پڑھ رہا ہوں. تو یہ جان نہیں چھوڑ رہا. اس نے بولا ٹھہرو. اس نے ڈنڈا پکڑا, 2-4 گدھے کو جا کے لگائی, گدھا بھاگا. تو اس نے وہ ڈنڈا اس کو دیا کہ ہر کام جو ہے نا دم درود سے نہیں چلتا, تقریروں سے نہیں چلتے کام, کچھ کام عملاً کرنے پڑتے ہیں. یہ جنہوں نے ناموس رسالت کے اوپر جو خاکے بنائے جن ملکوں نے, ان کو اس طرح کا میسج دینا ہے. ان کی مذمت کی ضرورت نہیں ہے, ان کی مرمت کرنی پڑے گی, اس کو ڈس انگیج کرنا پڑے گا, جان چھوڑ کے باہر پھینکنا پڑے گا, تب جا کے جو ہے نا دنیا آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اگر تقریروں سے آزادیاں ملتی تو کشمیر 73 سال سے تقریروں سے, مزاروں سے, ٹویٹ کرنے سے آزاد ہو جاتا. افغانستان میں نیٹو آ کے, امریکہ آ کے بیٹھ گیا تو وہ سارے مولوی افغانستان کے کہتے کہ بھائی ہم جو ہے نا وہ آواز کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں. میں دیکھتا جیسے وہ سپر پاور یہاں سے ذلیل ہو کے جاتی ہے. انہوں نے مقابلہ کیا ہے, کر کے دکھایا ہے. انہوں نے رونا نہیں رویا, مجبوری نہیں بتائی کہ ہماری جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کاٹن کی ایکسپورٹ بند ہو جائے گی, کون سی امپورٹ بند ہو جائے گی. آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. اور ایک لیڈر کی ضرورت ہے, یہاں وزیر اعظم کی ضرورت نہیں ہے. وزیر اعظم پہلے بھی آئے, آتے بھی آئے. صاحب نے بھی بتایا کہ مرمت کی ضرورت ہے, مذمت سے کام نہیں چلے گا. آپ کیا کہتی ہیں, بس فائنل مجھے کنکلوڈ کیجئے گا اس کو. دیکھیں ادیبہ, اصل میں یہ جو قوموں کو ٹھیک کرنا, یہ اتنا زیادہ مشکل کام ہے. قوموں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا. ہم لوگ ایز اے نیشن اتنے ڈیٹیریوریٹ کر گئے ہیں, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. اب دیکھیے ایک کال پر ہماری لبیک یا رسول اللہ کے لوگ جو ہیں انہوں نے کال دیا اور سب لوگ نکل آئے ان کے پروٹیسٹ کرنے کے لیے, گاڑیاں توڑنے کے لیے, گولیاں چلانے کے لیے. کیا وہ یہ ایک کال نہیں دے سکتے کہ رمضان میں آپ ناجائز منافع خوری نہ کریں اور آپ ملاوٹ نہ کریں اور آپ انسان بنیں؟ کیا یہ کال نہیں دے سکتے؟ اصل میں جہاں پر اپنے ذاتی مفادات ان کی عزیز ہیں, ان کو اس پر یہ ایکشن نہیں لیتے ہیں. لیکن ایک طرح کا لیبل اور یہ کہ جی ہم وہ کیا کہتے ہیں کان کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو جائیں, اس طرح کے معاملات میں یہ پیش ہوتے ہیں. یہ کیا اس طرح گاڑیاں توڑنا, لوگوں کو مارنا, اور ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آیا جو انہوں نے گولیاں چلائی ہیں, اور ہمارے کتنے پولیس آفیسر شہید ہوئے ہیں. ان کی تو ویڈیو بہت زیادہ ہو گئے ہیں, کے خلاف اور ڈائریکٹ گولیاں چلائی ہیں. مجھے یہ بتائیں جو ہے اور پولیس نے پہلے ان پر زیادتی کرنی شروع کی تو انہوں نے ہمارے ہاتھ ہے. ان کے پاس کوئی گولیاں نہیں تھی, کوئی بندوقیں نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. جی اسما صاحبہ,
वो महाजराई शुरू कर देते हैं। हमें ये माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा और हमें एज अ नेशन हर एक शख्स पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने आप को ठीक करे, तब जाके हम जाके एक मांडा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि सिस्टम की खराबी है जिसको ठीक करने की अच्छा, हम जरूरत है। उन्हें भी उसका क्या अप्रिशिएट कहती हैं? नहीं कर रहे, उनका भी एग्रेसिव जो बिहेवियर था दैट वाज नॉट गुड, वो भी ज्यादती पे थे। लेकिन जब आप ये देखें जो रियासत है वो डायरेक्ट अपनी आवाम पे गोलियां बरसाने लग जाती है, फिर हमदर्दी का वोट उधर चला जाता है। देखिए, बड़ी रियासत पे स्थिति नहीं में- जाता, रियासत तो जालिम कहलाने लग जाती है। फाइनल ओपिनियन मैडम बताइएगा फाइनल। देखिए अदीबा, बात ये है, इस मुल्क की तारीख है, जनरल मुशर्रफ बड़ा सुपर पावर बाजू लड़ाता था, उसका डाउनफॉल कहां से शुरू हुआ? जब उसने लाल मस्जिद के ऊपर अटैक किया। बिल्कुल कुरान पढ़ने वाले बच्चे जो भी था, जनाब, नॉन लीग साने मॉडल टाउन में गोलियां चलाई, दिन दहाड़े 14 बंदों का मर्डर, 100 जख्मी, ये सबके सामने है। वहां से इनका डाउनफॉल शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने और फैसला दे दिया। ये जो है पीटीआई, इन्होंने भी इसी तरीके से तरीके लब्बैक पाकिस्तान वालों के ऊपर, नहत्तू के ऊपर वो गोलियां चलाई। भाई ये गोलियां आसमा साहबा अगर आपने प्राइम मिनिस्टर या वजीर आला को ये कह देती कि जिन जखीरा अंदोजों का नाम लेते हो उन जखीरा अंदोजों के ऊपर चला देते, मनी लॉन्डरों के ऊपर चला देते, बत्ताखोरों के ऊपर चला देते, चीनी चोरों और गंदम चोरों के ऊपर चला देते, ये जितने स्कैंडलाइज पनामा लीग की लिस्ट है जी, उन नाज़रीन, सबको लाके खड़ा करके तो मुल्क इनके साथ होता, आवाम इनके साथ होती, नारे लगाती।